Hello and a very warm welcome to all of you on Prince Civil Services YouTube channel. Myself Chitranshu Pandey, welcoming you all on the session which we started last week, in which we started discussing and solving some questions from the medieval history section which were asked in some previous competitive exams. So this is going to be our second video. As you know that many students asked in the comment section as well as personally that this session should be concluded in Hindi language, but the questions which I am going to show you in the slides are in English only, but I will try my best to solve these questions and translate some of the important key terms in Hindi as well. So let's start this bilingual session जिसे हिंदी के बच्चे भी बहुत आसानी से समझ सकें with our first question of this series, and this series is going to be the कलेक्शन ऑफ सम क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिडाइवल हिस्ट्री से पूछे गए. सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन एज वेल, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड सम क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड फ्रॉम द यूपीएससी एज वेल, जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल और लेंदी एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं. So we are going to discuss both type of questions, one liner as well as some statement based conceptual questions as well. So let's start with our first question of the day, and that is the question which was asked in UPPCS prelims examination 2008. In this year, a simple question was asked from medieval history. As you can say, this is also a part of pre-medieval history. That in which battle, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी defeated जयचंद्र. Muhammad Gauri, which was the invader of Afghanis, or you can say Ghazni, जिसने भारत को इन्वेड किया था, और उसने किस बैटल में जयचंद्र को हराया था. जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ आंसर को फाइंड आउट करने में फोकस नहीं करेंगे, हम इसकी थोड़ी सी और चीजें जो इसके आसपास की हैं उसको भी कोशिश करेंगे कि इसको भी हम डिस्कस कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स लीड द ऑप्शंस हियर. बैटल ऑफ तराइन इज देयर. बैटल ऑफ तराइन अगेन इज देयर. एज यू नो, दो बैटल लड़े गए तराइन में. देन बैटल ऑफ चंदावर इज देयर एंड बैटल ऑफ कन्नौज इज देयर. तो यहाँ पर चार क्वेश्चन ऑप्शंस आपको दिए गए, एंड यू नो इट वेरी वेल कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहला इन्वेजन यू कैन से ये हुआ था 1175 एडी में. जी हाँ, इससे लगभग इस इवेंट के, तराइन के बैटल्स के लगभग 15 से 16 साल पहले गौरी का पहला इन्वेजन भारत में देखा गया था मुल्तान में. एंड आफ्टर दैट अ सीरीज ऑफ इन्वेजन्स हैपेंड इन दिस 15 ईयर्स, एंड अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर नॉर्थ इंडिया का उस टाइम रूल कर रहा था विच वॉज पृथ्वीराज चौहान ऑफ द चौहान डायनेस्टी, इसके साथ गौरी का बैटल होता है तराइन में. देयर वर टू बैटल्स व्हिच वर फॉट बिटवीन Gauri and Prithviraj Chauhan, and that were Battle of Tarain 1191, in which Prithviraj Chauhan got the victory, and the second Battle of Tarain in 1192, in which Muhammad Gauri was victorious. तो ये दोनों ही battles तराइन के आपके हुए 2 ही साल के अंदर है, but these both battles were fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Gauri. That is why these two battles can't be the answer of this question, क्योंकि यहाँ पे हमें से पूछा गया है कि जयचंद्र को किसने हराया. So as you know, the Pratihar dynasty was disintegrated in 36 different clans, और इसके बाद ही ये राजपूतों की अलग अलग ब्रांचेस, शाखाएं निकलकर सामने आई. एंड जयचंद्र वॉज द पार्ट ऑफ Jayachandra was the ruler of a new branch of Rajput that was called Gaharwal. And in Gaharwal branch, basically this branch was ruling in the region of Kannauj. आपने इसके बारे में ये भी सुनी होगी कहानी पृथ्वीराज और संयोगिता वाली. So he was the father of that संयोगिता which was related to the Prithviraj Chauhan. So he was ruling Kannauj, and in Kannauj he was also a competitor of Prithviraj Chauhan, who was the ruler of Ajmer, for the you can say domination over Delhi. So that is why both fought different battles with Muhammad Gauri. And here the answer is Battle of Chandavar in 1194. This is also correct. You can also say Battle of Kannauj, but specifically the place in which the battle was fought is Battle of Chandavar. That is why the answer is C, Battle of Chandavar 1194. Now the question is, what happened after the Battle of Chandavar? तो जैसे ही गौरी की सेनाओं ने कन्नौज को जीत लिया, बेसिकली उसके बाद गौरी की सेनाएं दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई. गौरी बैटल ऑफ चंदावर के बाद भारत को छोड़ देता है, और वो भारत को छोड़ने के बाद कहाँ निकल जाता है, अपने गजनी वापस निकल जाता है. दैट वाज हिज पॉलिसी कि वो
वापस से जाकर अपने आप को रीइंफोर्स करता है। एंड ऑन दैट टाइम दो अलग अलग ब्रांचेस में गौरी की दो अलग अलग आर्मीज दो साइड की ओर निकलती। दिस साइड जो आपकी राजपूतों की तरफ मूव कर रही है, दैट वाज लेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, वन ऑफ द स्लेव ऑफ गौरी, जिसने राजपूताना और गुजरात के रीजन को जीता इसके बाद, चंदावर के बाद। एंड दिस ब्रांच जो ईस्ट की तरफ बढ़ती है, दैट वाज लेड बाय बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने आगे चल करके कन्नौज के ईस्ट में जाते हुए आज के बिहार रीजन को और उसके बाद बंगाल को जीता, और वहीं बिहार में इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस इवेंट जो मैंने आपको बताई, तो इन सब से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन के आसपास के बाकी सारे फैक्ट्स भी रिवाइज करने चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बारे में बन सकता है, वो है द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वॉज। तो वो कौन सा युद्ध है जिसने भारत में मुस्लिम डोमिनेशन यानी इस्लाम के प्रभुत्व को एस्टेब्लिश किया, यानी कि उसको बनाया। तो यहाँ पर इस्लाम के प्रभुत्व को बनाने वाला फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। चारों के बारे में देखते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच में लड़ा गया? गौरी वर्सेस चौहान के बीच में। कौन जीता? चौहान। सेकंड बैटल ऑफ तराइन अगेन गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इस बार कौन जीता? गौरी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ा गया 1526 में बिटवीन बाबर एंड द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ दिल्ली, दैट वाज इब्राहिम लोदी, द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। कौन जीता? बाबर। एंड देन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन 1556 बिटवीन अकबर एंड हेमू, जिसमें कौन जीतता है? अकबर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसने मुस्लिम डोमिनेशन, ध्यान रखना है ये तुर्क्स हैं ये मुगल्स हैं, लेकिन दोनों ही अल्टीमेटली क्या है? मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम डोमिनेशन को जिसने एस्टैब्लिश किया, दैट इज ऑब्वियसली सेकंड बैटल होगी। यहाँ पे तो मुस्लिम्स हार गए गौरी चौहान से, तो डोमिनेशन एस्टैब्लिश हो नहीं सकती। ये 1500 के बाद के बैटल्स हैं, जिससे पहले सल्तनत ऑलरेडी 300-400 साल रूल कर चुकी थी। तो दीज टू ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर। ये जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है, इसमें गौरी ने विक्ट्री अचीव की थी, एंड दैट इज व्हाई यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1192 ने उस तराइन के बैटल ने उस डोर को ओपन कर दिया, जिसके बाद भारत के नॉर्दर्न पोर्शन में स्पेशली मुस्लिम डोमिनेशन एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई। सो हियर द आंसर शुड बी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी शुड बी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सो बी यहाँ पर आपका आंसर होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अपने माइंड को एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, क्या आंसर इसका सटीक हो सकता है। Now let's move on to the next question. This question was asked in UPPCS Special Means Examination 2008, and in this question there was some rulers which were named here, और हमको इनको अरेंज करना है किसमें? क्रोनोलॉजिकली, यानी जो पहले आया उसको पहले रखो और जो बाद में आया उसको बाद में रखो। हिंदी में टर्म है काल क्रमानुसार, यानी जो काल में क्रम से पहले आ रहा है उसको पहले रखिए और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में रखिए। लेट्स सी द नेम्स। Genghis Khan, he was parallel or you can say contemporary to the foundation of Delhi Sultanate in between 1220-1230। तो चंगेज खां का टाइम आप 1225 के आसपास हम मान लेते हैं, रफली 22-25 के आसपास। देन महमूद गजनवी इज देयर, जिसने भारत में बहुत सारे इन्वेजन किए अराउंड 1000 से लेकर के 1028 तक। देन देयर इज मोहम्मद गौरी, जिसने 1175 से लेकर 1206 तक अपनी डेथ तक इंडिया को डोमिनेट किया नॉर्दर्न इंडिया में। देन तैमूर इज देयर, तैमूर ने एक्चुअल में इन्वेजन किया था व्हेन देयर वाज तुगलक डायनेस्टी रूलिंग द दिल्ली in around 1398. So he came to India in 1398. We can say that somewhere around 1390 to 40 he was ruling in the region of Central Asia. So there were, that dynasty was called Timurids. So these are the orders. You can see easily that Mahmud Ghaznavi should be the first in this chronological order. The second should be Muhammad Ghori. So answer option 3 is there. Then it is Genghis Khan. Option 1 is there. Sorry, this one is 2. And then option 4, 2, 3 and 1, 4. And you can see that in these codes given below, the option B seems to be correct, as 2, 3, 1, 2, 4 is here. So the answer should be B, 2, 3, 1, 4. Now let's move on to the next question here. And the question is, Muhammad Ghori granted first Iqta to India in India to
तो गौरी ने अपने भारत में पहली एकता किसको ग्रांट की? So this question was asked in BPSC prelims examination in 1994. I know some questions are too old to discuss here, but as you can see, these I have only picked such questions जो थोड़े से अलग हों. These are not the simplest question here. बहुत सिंपल वन लाइनर फैक्ट्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ, बट इट इज नॉट इन द यूज बिकॉज आपको वो ऑलरेडी पता है. तो मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो थोड़े से अलग हैं लीग से हटकर. So now is the options here: Yildiz, Aibak, Iltutmish, Kubacha. As you can see, this all four rulers, in fact the first two and last ruler, were the slaves of Gauri, right? And Samsuddin Iltutmish was the successor and slave of Kutubuddin Aibak. So actually Iltutmish was not related to Muhammad Gauri directly. He was in the army of Gauri during the battles of Tarain and Chandavar, but still you cannot say that he granted some iktas to him. So this cannot be the answer. तीन ऑप्शन जो बच रहे हैं वो है यल्दौज, ऐबक एंड कुबाचा. नाउ यू कैन सी कि आफ्टर बैटल ऑफ तराइन गौरी का जो एम्पायर है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो गया था. दैट इज वाई उसने अपने एम्पायर को कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर रखा था. दिस वाज एक्चुअली द एम्पायर, रफली मैंने ड्रॉ किया है, जो इस समय गौरी के पास था. ही वॉज हिमसेल्फ रूलिंग गजनी. तो गजनी में गौरी का रूल है एंड गजनी अपॉइंटेड वन ऑफ हिज स्लेव कॉल्ड ताजुद्दीन यल्दौज हियर कि आप इसके पास रूल करिए. देन ही अपॉइंटेड नासिरुद्दीन कुबाचा इन द रीजन ऑफ लाहौर एंड मुल्तान. तो कुबाचा यहाँ पर आ गया एंड उसने ऐबक को ग्रांट किया था अपना दिल्ली और लाहौर वाली डायनेस्टी. तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि इंडिया में पहली एकता किसको दी. एंड इंडिया में पहली एकता ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिख रही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी. एंड इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्लेव्स को और एकताएं देनी शुरू करी. यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है बिकॉज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड ही वाज अ स्लेव. उस टाइम पर स्लेव्स को ही जनरली सक्सेसर बनाया जाता था. दैट इज व्हाई इल्तुतमिश की एकता कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए. So there was a place, there actually is a place called Badaयूं in Uttar Pradesh, and that region was governed by Samsuddin Iltutmish during the phase of Kutubuddin Aibak. तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की एकता कौन सी है? बदायूं. और यहीं से वो बाद में सक्सीड करेगा किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को आफ्टर डिफीटिंग अ रूलर कॉल्ड आराम शाह इन 1211 इन द बैटल ऑफ जूद. एंड एक्सेप्ट दैट कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर सही उत्तर आपका बन रहा है. सो आंसर इज बी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वन लाइनर बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1991. And that question says that which slave of Muhammad Gauri conquered Bengal and Bihar? As I discussed earlier, this was the map which I draw earlier, and that is this map. और यहाँ मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बैटल ऑफ चंदावर हो गया, बैटल ऑफ तराइन हो गया, गौरी लौट गया अपने गजनी में एंड उसने दो आर्मीज को डिवाइड किया. एक आर्मी दी किसको? ऐबक को, जो राजपूताना और गुजरात की तरफ बढ़ी, और एक आर्मी दी उसने बख्तियार खिलजी को, जो ईस्ट में बिहार की तरफ और उसके बाद बंगाल की तरफ बढ़ी. इसी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था. एंड अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस डायग्राम एज वेल कि किसने बंगाल को और बिहार को जीता. एज यू कैन से बख्तियार खिलजी, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था, वही इसका बहुत सिंपल आंसर है. ऐबक ने राजपूताना और गुजरात को जीता. इल्तुतमिश ने कुछ नहीं जीता, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था तो वो उसके साथ ही था. यल्दौज वहीं पर था, कहाँ पर? गजनी के आसपास. तो वो इंडिया में नहीं आया, उसने गजनी के आसपास ही गौरी को सक्सीड किया था. और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी. तो दीज वर द क्वेश्चन जो मैंने आपको गजनवी और गौरी से डिस्कस करा है. आई होप समवेयर यू गॉट सम न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन. और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चंस के सराउंडिंग में और भी जो फैक्ट्स बन सकते हैं उनको भी आप रिवाइज करिए. सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आपका मेन पर्पज नहीं होना चाहिए. आई होप दिस सेशन ऑल्सो हेल्प यू समवेयर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वी विल सून मीट इन अनदर वीडियो जिसमें हम कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे. अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो उसे कमेंट में जरूर बताइए. मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि आपको हिंदी में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको डिस्कस कर सकूं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.